بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شکیرہ۔ اگر آپ سکون اور ہدایت چاہتے ہیں تو یہ کہانی آپ کے لیے ہے۔ یہ کہانی ہے زویا کی، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ رات کا سناٹا ابھی باقی تھا، شہر کی گلیاں ابھی سو رہی تھی، مگر میری کھڑکی سے ہدایت کی ایک دبی ہوئی روشنی نیل گن آسمان سے ٹکرا رہی تھی۔ لوگ کہتے ہیں دن کی شروعات سورج کے نکلنے سے ہوتی ہے، مگر میرے لیے دن تب شروع ہوتا ہے جب میں اپنے رب کے سامنے کھڑی ہوتی ہوں۔ جب الارم کی آواز نے میرے کمرے کا سناٹا توڑا تو میں نے شکایت میں نہیں بلکہ شکر میں آنکھیں کھولی۔ تہجد کا وہ وقت میرے لیے دنیا سے کٹنے اور خالق سے جڑنے کا وقت ہوتا ہے۔ میں نے جب وضو کیا تو وہ ٹھنڈا پانی میرے چہرے سے ہوتے ہوئے مانو میری روح تک کو تازہ کر گیا۔ میں نے اپنا وہی نیلے رنگ کا پرانا مصلی بچھایا۔ یہ کپڑے کا ٹکڑا نہیں تھا، یہ میری وہ جگہ تھی جہاں میں سب سے زیادہ محفوظ محسوس کرتی تھی۔ میرے گھر کی دیواروں سے پلاسٹر اکھڑ رہا تھا، فرنیچر پرانا تھا، لیکن وہاں ایک ایسی خوشبو تھی جو بڑے سے بڑے محلوں میں میسر نہیں ہوتی۔ سجدوں کا سکون۔ میں دعا میں مشغول تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا۔ میری امی اندر آئی، ان کے ہاتھوں میں ایک نیا چمکدار جوڑا تھا۔ زویا بیٹی، اٹھ جا، آج تیرے نئے سفر کی پہلی دہلیز ہے، وہ لوگ آتے ہی ہوں گے۔ میں نے دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہاتھ نیچے کیے اور امی کی آنکھوں میں دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں خوشی تو تھی پر ایک فکر کی لکیر بھی تھی۔ میں نے دبے پاؤں ان کے پاس جا کر پوچھا، امی کیا وہ لوگ دیندار ہیں؟ میں نے سنا ہے ان کا گھر بہت بڑا ہے، کیا وہاں نماز کی جگہ ہوگی؟ کیا وہاں کی دیواروں کو بھی اللہ کے ذکر کی عادت ہوگی؟ امی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ بیٹی، گھر تو سب ایک جیسے ہوتے ہیں، انہیں جنت یا دوزاخ وہاں رہنے والے بناتے ہیں۔ تو جائے گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے مسکرا کر سر تو جھکا لیا، مگر میرا دل کسی انجانی ہلچل سے کانپ رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ جس گھر میں جا رہی ہوں وہاں کا سٹینڈرڈ تو بہت اونچا ہے، مگر وہاں کی روح نماز سے خالی ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میری ٹکر ایک ایسی دنیا سے ہونے والی ہے جہاں اللہ کا نام صرف مصیبتوں میں لیا جاتا ہے، عبادت میں نہیں۔ رخصتی کے وقت کی وہ سسکیاں ابھی میرے کانوں میں گونج ہی رہی تھی کہ گاڑی ایک بہت بڑے گاٹے کے سامنے رکی۔ میرے سامنے ایک ایسی عمارت تھی جو کسی خواب جیسی لگتی تھی، اونچے ستون، چمکتی ہوئی لائٹس اور ایک ایسی شان و شوکت جو میری آنکھوں کو چندھیا رہی تھی۔ میں نے جب پہلا قدم اس دہلیز پر رکھا تو میرے دل نے ایک عجیب سی ٹھنڈک نہیں بلکہ بے چینی محسوس کی۔ اندر داخل ہوتے ہی مجھے محسوس ہوا کہ میں کسی گھر میں نہیں بلکہ کسی ہوٹل یا ایگزیبیشن میں آ گئی ہوں۔ ہر طرف لوگ تھے، مہنگے لباس، پرفیوم کی تیز خوشبوئیں اور ہر کونے میں سنگیت کا شور۔ میری ساس اور ناندیں مجھے ملنے آئیں۔ ان کے چہروں پر خوشی تو تھی پر ان کی باتیں صرف میرے جوڑوں اور گہنوں تک محدود تھیں۔ زویا، دیکھو تمہارے لیے کتنا مہنگا سیٹ لیا ہے ہم نے، میری ساس نے بڑے فخر سے کہا۔ میں نے مسکرا کر سر تو جھکا لیا، مگر میری نظر کونے میں رکھی اس گھڑی پر تھی جہاں عشاء کا وقت جا رہا تھا۔ امی، نماز کی جگہ کہاں ہے؟ میں نے بہت دھیمے سے پوچھا۔ میری ناند زور سے ہنسی۔ بھابھی، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، آج کے دن کون نماز کی بات کرتا ہے، آج تو انجوائے کرنے کا دن ہے۔ ان کی باتوں نے میرے دل پر ایک پتھر سا رکھ دیا۔ میں اس شور و گل کے بیچ خود کو اکیلا محسوس کرنے لگی۔ فرحان میرے پاس کھڑا تھا، اس نے میرا ہاتھ تھما پر اس کا دھیان بھی اپنے دوستوں اور موبائل پر تھا۔ رات ڈھل رہی تھی اور میں اس نئے بڑے کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی۔ میں نے اپنا وہی پرانا نیلا مصلی نکالا جو میں اپنے ساتھ مائکے سے لائی تھی۔ جب میں نے اسے اس چمکتے ہوئے ماربل فلور پر بچھایا
तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं एक रेगिस्तान में नखलिस्तान ढूंढ रही हूँ। वहाँ कोई फजर के लिए उठाने वाला नहीं था। वहाँ सुबह की शुरुआत कुरान की तिलावत से नहीं, बल्कि कॉफ़ी की खुशबू और बिजनेस की बातों से होती थी। मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं सिर्फ एक नए घर में नहीं आई हूँ, मैं एक जंग के मैदान में आ गई हूँ, जहाँ मुझे अपनी रूह को जिंदा रखने के लिए लड़ना होगा। शादी के कुछ दिन गुजर चुके थे। इस बड़े घर में सब कुछ था, नराम बिस्तर, कीमती पर्दे और हर वक्त चलता हुआ शोर। मगर मेरे लिए वहाँ की हवा में एक घुटान थी। फरहान, मेरा शौहर, वो बुरा इंसान नहीं था। वो मुझसे मोहब्बत से पेश आता, मेरे लिए तोहफे लाता, मगर उसकी बातों में कभी अल्लाह का जिक्र नहीं होता था। वो दुनिया की हर चीज की बातें करता, मगर उस सुकून से महरूम था जो मुझे सजदों में मिलता था। एक रात जब पूरा घर गहरी नींद में सो रहा था, मेरी आंख अलार्म से पहले ही खुल गई। तहज्जुद का वक्त था। मैंने आहिस्ता से बिस्तर छोड़ा ताकि फरहान की नींद ना खराब हो। मैं सजदे में थी और रो रो कर अपने रब से फरहान के लिए दुआ कर रही थी। या अल्लाह, तूने मुझे इस घर में भेजा है, मुझे इस घर का नूर बना दे, मेरे शौहर के दिल को अपनी तरफ फेर दे। मेरी सिसकियों की आवाज़ कमरे में गूंज रही थी। मुझे एहसास नहीं हुआ कि फरहान की आंख खुल चुकी है। वो बिस्तर पर बैठा हैरत और एक अजीब सी कश्मकश से मुझे देख रहा था। उसने शायद अपनी जिंदगी में पहली बार किसी को इतनी तड़प से मांगते देखा था। जब मैंने सलाम फेरा और अपने आंसू पहुंचे तो मैंने देखा फरहान मुझे देख रहा है। जोया, तुम इतनी रात को क्यों रो रही हो? क्या मुझसे कोई गलती हुई? क्या तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ है? मैंने उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा मासूम था, मगर दीन से बिलाल खाली। मैंने मुस्कुराकर अपना हाथ उसके हाथ पर रखा। नहीं फरहान, रोना सिर्फ दुख में नहीं होता, कभी कभी अपने रब के सामने रोना सुकून देता है। क्या आप मेरे साथ फजर की नमाज पढ़ेंगे? आज सुबह की शुरुआत मेरे साथ करके देखिए। फरहान थोड़ा हिचकिचाया। उसने अपने बाल सहले और नजरें चुरा ली। फरहान, जोया, तुम्हें पता है मैं बचपन से इन सब चीज़ों से दूर रहा हूँ। मेरे घर में कभी किसी ने जोर नहीं दिया। मैं कैसे बस एक बार, मेरे लिए नहीं, उस सुकून के लिए जो आप इस चमकती दुनिया में ढूंढ रहे हैं मगर मिल नहीं रहा। उस सुबह फरहान ने पहली बार वुजू किया। उसने थोड़ा गलत ही सही, मगर मेरे पीछे खड़े होकर हाथ बंधे। जब हम दोनों ने मिलकर रुकू और सजदा किया तो मुझे ऐसा लगा जैसे उस कमरे की दीवारों ने भी सांस ली हो। लेकिन असली आजमाइश तब शुरू हुई जब हम कमरे से बाहर निकले। बाहर मेरी सास खदी थी, उनके हाथ में टीवी का रिमोट था और चेहरे पर एक सख्त तांज। फरहान, ये क्या नया तमाशा है? जोया ने क्या तुम्हें भी अपने जैसे पुराने ख्यालात का बना दिया? फरहान ने मेरी तरफ देखा और फिर अपनी माँ की तरफ। मैंने महसूस किया कि उसकी पकड़ मेरे हाथ पर मजबूत हो गई। जंग अब शुरू हुई थी। घर का माहौल बदल चुका था। फरहान अब मेरे साथ फजर में उठने लगा था और ये बात मेरी सास और नाना दो को कांटे की तरह चुभने लगी थी। उन्हें लग रहा था कि मैं उनके बेटे को काबू कर रही हूँ, उसे उनकी महफिलों और दुनियादारी से दूर कर रही हूँ। एक शाम जब घर में एक बड़ी पार्टी की तैयारी चल रही थी, मेरी सास मेरे कमरे में दाखिल हुई। उनके हाथ में एक बहुत ही मॉडर्न और नया सा जोड़ा था जो मेरी तबीयत और दीन के बिल्कुल खिलाफ था। सास, जोया, आज हमारे बिजनेस पार्टनर्स आ रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि तुम वही पुराने ढंग से उनके सामने जाओ। ये पहनो और थोड़ा तैयार हो जाओ। और हाँ, आज वो नमाज रोजे का जिक्र मत छेड़ना, लोग बातें बनाते हैं। मैंने उस जोड़े को देखा और फिर अपनी सास की सख्त आंखों में। मेरा दिल कांप रहा था, मगर रूह खामोश थी। अम्मी, मैं वही पहनूंगी जिसमें मेरी हाया महफूज रहे। और रही बात अल्लाह के जिक्र की, तो वो तो मेरी सांस है, मैं उसे कैसे रोक सकूं?
उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तो फिर ठीक है, अगर तुम हमारी तरह नहीं रह सकती तो उस घर में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं होगी। मैं कमरे में थी, तभी फरहान अंदर आया। उस पर उसकी माँ का दबाव था, वो परेशान दिख रहा था। फरहान, जोया क्यों जिद कर रही हो? बस आज की तो बात है। माँ कितनी नाराज है, तुम समझती क्यों नहीं? मैंने फरहान का हाथ थमा और उसे खिड़की के पास ले गई, जहां से बाहर की चमकती लाइट्स दिख रही। फरहान, क्या आपको याद है वो सुकून जो हमने उस दिन सजदे में पाया था? क्या आप उस एक पल के सुकून को इस एक रात की चमक के लिए बेच देंगे? मैं आपकी इज्जत हूँ। क्या आप चाहते हैं कि मैं वो बन जाऊं जो मैं नहीं हूं? फरहान की नजरें झुक गईं। उसे एहसास हुआ कि वो किस कश्मकश में था। बाहर से उसकी माँ की आवाज आई, फरहान कहाँ हो? सब इंतजार कर रहे हैं। फरहान ने एक गहरी सांस ली। उसने मेरा हाथ छोड़ा, मगर इस बार वो पीछे हटने के लिए नहीं था। वो पलट कर दरवाजे की तरफ गया और अपनी माँ के सामने खड़ा हो गया। फरहान, माँ, जोया वही पहनेगी जिसमें वो खुश है। और अगर आपको लगता है कि दीन की वजह से हमारा स्टैंडर्ड कम हो जाता है, तो शायद हमारा स्टैंडर्ड ही गलत है। पूरा हॉल एक पल के लिए खामोश हो गया। संगीत की आवाज मानो थम सी गई। मेरी सास की आंखों में आग थी, मगर फरहान के चेहरे पर वो नूर था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैं कमरे में बैठी शुक्र के सजदे में गिर गई। मेरे ससुराल वाले अब मुझसे और भी ज्यादा कतने लगे। उनके दिलों में नफरत भर गई थी, मगर मेरे शौहर का दिल अब मेरे लिए नहीं, मेरे रब के लिए धड़कने लगा था। वक्त गुजारता गया। मेरे ससुराल में अब भी वही पुराना शोर था, वही पार्टियां, वही दुनियादारी की बातें और वही टीवी की गंज। मेरी सास और नन्ना देन अब मुझसे ज्यादा बात नहीं करती थी। उन्हें लगता था कि मैंने उनका बेटा छीन लिया है, मगर उन्हें ये नहीं मालूम था कि मैंने उनका बेटा उन्हें नहीं बल्कि उनके खालिक को सौंप दिया है। एक दिन बारिश हो रही थी। मैं अपने कमरे की खिड़की के पास बैठी कुरान की तिलावत कर रही थी। फरहान काम से थका-हारा लौटा, मगर उसके चेहरे पर वो पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। उसने चुप चुप वुजू किया और मेरे बराबर में अपना मुसल्ला बिछा दिया। नमाज के बाद फरहान ने मेरा हाथ पकड़ा और बहुत धीमे से कहा, जोया, शुरू में मुझे लगता था कि तुम मुझे मेरी आज़ादी से दूर कर रही हो, मगर आज मुझे एहसास होता है कि आज़ादी तो ये है, अपने रब का हो जाना। इस घर में इतनी रौनक है, इतना पैसा है, मगर जो सुकून मुझे इस मुसल्ले पर मिलता है वो कहीं और नहीं। मैंने मुस्कुराकर बाहर की तरफ देखा, जहां अंधेरा था, मगर मेरी खिड़की से एक हल्की सी रोशनी बाहर की गली में जा रही थी। मैंने अपने ससुराल को तो नहीं बदल पाई। वो लोग आज भी अपनी उसी दुनिया में मगन हैं जहां अल्लाह का जिक्र सिर्फ रस्म और रिवाज है। मगर मुझे मालूम है कि मैंने अपना फर्ज निभा दिया। मैंने एक चिराग जलाया था और उसकी रोशनी ने मेरे शौहर की जिंदगी को मुनव्वर कर दिया। हिदायत उन्हें मिलती है जो उसे तलाश करते हैं, और सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। अगर मेरी कहानी आपको पसंद आए तो दिल से सपोर्ट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। आपका एक छोटा सा सपोर्ट मेरे लिए बहुत बड़ी हिम्मत बन जाता है।